Good morning, dear students. So today we are going to study about biodiversity and the conservation, that is chapter 14, and we are not continuing with the chapter 14, that is ecosystem, because it is deleted in your syllabus. So that's why from today we are going to discuss about the chapter biodiversity and the conservation. And this chapter is also very easy. You have studied in your previous classes, that is what is the meaning of the biodiversity, and you all know that biodiversity means various kinds of plants, various kinds of animal species are present on the earth. तो आप सब ये पढ़ चुके हैं ना, बहुत तरह के प्लांट्स, एनिमल्स जो भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल इन योर एनसीईआरटी द पर्टिकुलर डेटा हैज़ गिवन लाइक 20,000 species of ants and 3 lakh species of beetles. You have to remember this. Sometime they can be asked in the form of 1 marks question also, because this time they have reduced the syllabus. So each and every line of the CBSE is of NCERT is very much important. So be careful and learn all this data which is given in your book. And 28,000 species of fish, whereas 20,000 species of orchids. These are the number of various kinds of species which till today they have discovered कि ये species हैं, और अभी बहुत सारी हैं जो इन्होंने डिस्कवर करनी बाकी हैं. तो these are the some data जो कि आपको लर्न करना है. इस डेटा को आपने ध्यान से करना है. Then now come to the next thing, that biodiversity. What is the biodiversity? Just as I told you, now there are certain another facts which they have discussed here, that biodiversity means ki you are talking about the heterogeneity. Heterogeneity means variations. How much variation can be possible on the earth, on this planet. So that is called heterogeneity. Heterogenetically भी आप इसको बोल सकते हो, या heterogenicity भी आप इनको बोल सकते हो. तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज़ नॉट ओनली एट द स्पीशीज़ लेवल बट प्रेजेंट ऑन द ऑल लेवल. जैसे कि आप बात करो, फॉर एग्जांपल इफ़ वैसे तो यू कैन से और यू आर थिंकिंग अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ और द एनिमल स्पीशीज़, but I am not talking about the plant and animal. I am also talking about the various kinds of biochemical reactions. You can also find various kinds of biological molecules. You can also find the diversity, because for example like there is a protein. तो आपको पता है कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स मेड्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स. तो वहाँ भी तो डिफरेंस हुआ ना, सारे प्रोटीन तो एक जैसे नहीं है बच्चों. इसी तरह से इफ़ यू टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ अनदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ, जैसे पॉलीमर आप बोलते हो. तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल को बनाने के लिए भी बहुत सारे तरह के आपको शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं. आपने पढ़ा है डाइसैक्राइड्स यू हैव स्टडीड, मोनोसैक्राइड्स यू हैव स्टडीड, पॉलीसैक्राइड्स यू हैव स्टडीड. तो दैट मीन्स कि वहाँ पर भी तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, फिर जाके एक शुगर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनता है. लाइक सेम इन द केस ऑफ लिपिड्स. तो एडवर्ड विल्सन, देयर इज ए इम्पॉर्टेंट नेम, ही इज़ अ सोशियोबायोलॉजिस्ट. और ये जो सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने आपको क्या बताया, इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो सब उन्होंने कंबाइन करके उसके वेरियस लेवल्स बताए. व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल. तो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लेवल्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, एंड दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और इनको लर्न भी करना है. The most important is an example which I have just going to explain you, that genetic diversity means a single species may have different kinds of genetic variations. है ना, कोई भी species हो उसमें genes का change हो सकते हैं, and for that change of gene वो different kinds of species आपको मिलेंगी. तो they have given one example which is very much important. ये आपको learn करना 100%, that there is a plant which is found in the Himalayan range. Himalayan region में पाया जाने वाला एक plant है, मेडिसिनल प्लांट है. दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस सर्टेन मेडिसिन, एंड द प्लांट का नेम है राउल्फिया वोमिटोरिया. तो दिस राउल्फिया वोमिटोरिया, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ मेडिसिनल प्लांट, एंड व्हाट इज इज यूटिलिटी, दैट इट गिव्स सर्टेन काइंड्स ऑफ केमिकल विच इज यूज इन फर्दर इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन्स. तो राउल्फिया वोमिटोरिया से जो हम केमिकल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसरपाइन. दिस इज हियर दे हैव गिवन. तो रेसरपाइन इज द केमिकल. तो हम ये रेसरपाइन केमिकल जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ, फिर हम जो मेडिसिन होते हैं आपको पता है दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोटेंसी. तो वो मेडिसिन जो है वो हम बनाते हैं. पोटेंसी मीन्स कितनी उसके अंदर पावर होती है. तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग या माइल्ड मेडिसिन कैन बी. तो ये हिमालय तो इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन, आपको पता है इट इज़ अ रेंज. देयर आर सो मेनी माउंटेन्स विच आर स्प्रेड एकर्स ऑफ द लैंड. तो वहाँ पर अलग अलग काफ़ी डिस्टेंस पे ये प्लांट्स हैं. तो उनमें हर प्लांट को जिसको भी आप लेंगे और रेसरपरीन आप एक्सट्रैक्ट करोगे, तो यू विल नोटिस टू सरप्राइज कि
यू विल सरप्राइज टू नोटिस कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स उसमें से निकलेंगे, मतलब किसी में कम निकलेगा, किसी में ज़्यादा निकलेगा, कोई स्ट्रॉन्ग होगा, कोई कम स्ट्रॉन्ग होगा. तो आपको सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमेटोरिया विच इज़ फाउंड इन डिफरेंट हिमालयन रेंज, द केमिकल रेसरपरीन विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इट हैज़ डिफरेंट पोटेंसी, अलग अलग पोटेंसी होती है, मतलब उसकी पावर जो है वो अलग अलग होती है, वो हर एक में एक सा नहीं होती. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज विच केम इन द एग्जाम, इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्टेन्स ऑफ राइस. जो राइस के आप बासमती राइस खाते हैं ना, वैरायटी ऑफ राइस है, आप देखते हैं तमाम तरह का, तो वो कम से कम नहीं तो 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट है. आप तमाम तरह के राइस खाते हो, उनके नेम्स अलग अलग होते हैं, उनका स्वाद अलग होता है, आपको पता है उनका अरोमा अलग होता है, उनका टेस्ट अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है. तो इंडिया में अलोन हम बात कर रहे हैं. एंड देन 1,000 स्पीशीज ऑफ मैंगो. मैंगो इज नाउ डेज कमिंग इन द मार्केट, तो आप जल्दी से याद रख लेना कि 1,000 वैराइटीज़ ऑफ मैंगो है. हाँ, आपको जरूर है कि हर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस. कहीं पे जैसे हापुस आम है, कहीं पे अल्फांसो है, कहीं पर दशहरी है, कहीं पे तोतापुरी है, कहीं पे लंगड़ा है. तो देयर आर सो मेनी वैराइटीज़ ऑफ मैंगोज, यू हैव हर्ड अबाउट इट. तो 1,000 वैराइटीज़ इसकी हैं, आपको ध्यान रखना है. एंड 50,000 जो है वो राइस की हैं. नाउ कम टू द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल पर होती, दैट मीन्स देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंस इन डिफरेंट वेरियस स्पीशीजेस. एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट जो प्लेसेज हैं, तो वेस्टर्न घाट्स हैव द मोर डाइवर्सिटी, it shows more diversity and lots of amphibian species are found there in comparison to the eastern ghat. Now come to the ecological diversity. As you know that India jo hai, it's a vast country, and we are fortunate that we have different kinds of ecosystem present in the India, like desert hai, rainforest hai, mangroves hai, coral reefs, wetlands, estuaries, alpines, these all the various kinds of ecosystems. And because they have various kinds of ecosystem, they have different kinds of environment, they have different kinds of weather conditions. तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑब्वियस है कि ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, क्योंकि वहाँ पर अभी डेवलप्ड हो रही है, इतना ज़्यादा इकोसिस्टम अभी रोबस्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू दीज. तो ये डेवलपिंग फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली कम होगी इन कंपैरिजन टू दीज एरियाज. नाउ देयर इज अनदर पैराग्राफ गिवन, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं दिया, बट दे हैव जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कि अभी तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं हमें डिस्कवर करनी बाकी हैं, बिकॉज एवोल्यूशन आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टार्ट हुआ पड़ा है, और एट दैट टाइम स्पीशीज़ शायद इतनी नहीं रही होंगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द स्पीशीज़ गेट एक्यूमुलेटेड. एंड नाउ डेज वी जस्ट इफ़ स्टार्ट थिंकिंग, तो हमें तो लगता है पता नहीं कितनी सारी स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड में अभी, बट अभी बहुत सी स्पीशीज़ डिस्कवर होनी बाकी हैं, और शायद हम जब तक डिस्कवर करेंगे मे बी लॉट्स ऑफ स्पीशीज़ कैन बी लॉस्ट, वो भी जा सकती हैं, क्योंकि हम उतनी जल्दी से उनको डिस्ट्रॉय भी तो कर रहे हैं, और हो रही हैं ऑटोमेटिक भी कुछ हो रही हैं, तो कंज्यूम हो जाएंगी वो इतनी, अगर हम स्लो स्पीड में उनको डिस्कवर करते हैं, या डिस्कवरी अभी काफ़ी बाकी है. नाउ हाउ मेनी स्पीशीज़ आर अर्थ ऑन द अर्थ एंड द हाउ मेनी इन इंडिया. This is another thing. One more important thing, IUCN, you have to remember this always. This is I for International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. ये इसका फुल फॉर्म होता है. एंड 2004 में ये एक इस्टेब्लिश किया हुआ है, आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सो दैट इनका काम होता है ये सब पता लगाना कि कितने एनिमल्स हैं, क्योंकि जो नेचुरलिस्ट हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट समटाइम्स, तो दे हैव वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिस्कवरिंग द न्यू स्पीशीज़ एंड न्यू प्लांट. आपको लगेगा तो बोरिंग काम है, बट दे लव दैट द वर्क, तो उनको अच्छा लगता है ढूंढना, स्पीशीज़ प्लांट ये सब ढूंढते रहते हैं. और देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं प्रॉपर. पहले तो बुक्स के फॉर्म में होता था, नाउ डेज इट इज़ कंप्यूटराइज, तो वो कंप्यूटर्स में सारा डेटा जो है वो फिल किया जाता है. तो ये सारा डिस्कवर करना उनका काम है. एंड सो फार दे हैव नोटिस दैट मोर देन 1.5 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ दे हैव डिस्क्राइब्ड, उनको वो डिस्क्राइब कर चुके हैं 1.5 मिलियन के करीब, बट उनको पता है कि अभी भी बहुत कुछ ढूंढना बाकी है, बिकॉज दे हैव गिवन द इम्पॉर्टेंट लाइन हेयर दैट ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो हैं हमारे, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, आपको पता है देयर आर टू थिंग्स, आप पढ़ते हो कि दो प्लेसेस होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. तो ट्रॉपिकल में अभी देयर आर लॉट मोर स्कोप टू डिस्कवर द थिंग्स, क्योंकि टेम्परेट को तो पूरा लगभग उन्होंने कर ही लिया एक्सप्लोर. तो हाउ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर, दे नो इट वेरी वेल, बट इन द ट्रॉपिकल देयर आर लॉट मोर स्पीशीज़ कैन बी फाउंड. अभी वो इतनी डिस्कवरी उन्होंने की नहीं है, तो अगर वो कुछ ढूंढना ही चाहते हैं तो दे हैव टू चूज़ ट्रॉपिकल, है ना, टेम्परेट में ना जाके ट्रॉपिकल में ढूंढेंगे तो उनको मिलेगा बहुत कुछ. एंड रॉबर्ट मे जो हैं, इधर दिया हुआ है, रॉबर्ट मे
इन्होंने ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को उन्होंने कैलकुलेट किया और ये बताया कि 7 मिलियन के करीब ये हो सकती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एंड नेक्स्ट पेज पे दे हैव गिवन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. लाइक 70% के करीब जो है आपकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो रिकॉर्ड की हुई हैं, मोर देन 70% रादर आप बोलो तो. रिकॉर्डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारा कुछ है इसमें. एल्गी, फंजाई, सारा कुछ आता है. जितने भी प्लांट्स होंगे, लाइक आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम एल्गी टू जिम्नोस्पर्म, ये सारा कुछ आ जाएगा. एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, ये सारा कुछ आ जाएगा. तो ये 22% जितना हमारा टोटल है, जैसे जितने हम प्लांट की बात करते हैं पूरे, तो देयर मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज़ आर एनिमल्स. आपको ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम एनिमल्स हैं. और उनके बाद उनसे कम जो बचे हुए वो हैं, मतलब 22 भी नहीं पड़े, 22% भी नहीं पड़े, वो सारे जो हैं वो प्लांट्स हैं. तो द एनिमल्स आर मोर ऑन द अर्थ. एंड उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि 70% जो, अगर आप 10 एनिमल्स ले लो तो उसमें से 7 तो आपके इंसेक्ट हैं. दैट मीन्स दे बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थोपोडा. तो अमंग एनिमल, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट पॉपुलर और यू कैन से मोस्ट कॉमन स्पीशीज़. एंड अराउंड 70% ऑफ टोटल जो हम एनिमल्स पढ़ते हैं उनमें सब यही है, 70% तो एनिमल हैं. तो मतलब अगर आप एस्टिमेट निकालेंगे तो यू फाइंड दैट आउट ऑफ 10 देयर आर 7 आर द इंसेक्ट. मतलब एनिमल्स, अगर 10 एनिमल लोगे तो उसमें 7 आपको इंसेक्ट ही मिलेंगे इसके अंदर. नाउ दे हैव गिवन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो विच इज़ इंपॉर्टेंट. आई हैव जस्ट रिटन हियर. फंजाई स्पीशीज़, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज़ है इन द वर्ल्ड is more than the combined total number species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. Means इनको आप combine कर दो, इनको fish plus amphibian plus reptile plus mammals, इनको सबको एक तरफ कर लो और फंजाई की स्पीशीज एक तरफ कर दो. तो that means fungi is more than the combined number of these four. Now this is very much important diagram. It is given here. One is invertebrate, vertebrate and plants. This is a pie chart and they have shown the global biodiversity and major species, major taxa वो दिखाया हुआ है आपको. तो इनवर्टिब्रेट्स में आप आएंगे तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा तो इंसेक्ट हैं, जैसे मैंने कहा था 10 से 7, तो ये मैक्सिमम ये हो गया. सेकंड मैक्सिमम अदर हो गया. नेक्स्ट जो है वो मोलस्का हो गया. एंड जो थर्ड है वो क्रस्टेशियन हो गया. तो यू हैव टू रिमेंबर इट. और अगर इसको हमें याद रखना है तो हम कोई सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं ओथ, MC लिख सकते हैं. ओथ का मीन्स अदर एनिमल ग्रुप्स, ठीक है, तो अदर एनिमल ग्रुप्स आ जाएंगे. और MC का मीन्स मोलस्का आ जाएगा और क्रस्टेशियंस आ जाएगा. तो कोई वर्ड्स होंगे वो मैं बना के आपको दूंगी अभी. देन आप वर्टिब्रेट्स में आएंगे तो वर्टिब्रेट्स में वाटर जो है वो आपको पता है मैक्सिमम है अर्थ पे, तो फिशेस सबसे ज़्यादा हैं. और उसके बाद उसको ऑक्यूपाई किया है बर्ड्स ने. बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स में, देन मैमल्स एंड एम्फीबियन नियर अबाउट एक साथ शेयर करते हैं. नाउ कम टू द प्लांट्स. यू नो दैट एंजियोस्पर्म्स इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड डोमिनेटिंग प्लांट्स ऑन द अर्थ. तो एंजियोस्पर्म्स इज मैक्सिमम. देन फंजाई, यू हैव अर्लियर स्टडीज दैट फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इन सबको एक तरफ कर लो और फंजाई एक तरफ है. तो उसी तरह से एल्गी इज देन एल्गी, आफ्टर देन मॉसेज एंड एलाइज, फर्न एलाइज एंड देन लाइकेंस. So these are the pie charts. Sometime in exam they have given the pie charts but hide the names and you have to write down the names कि कितना percentage किसका है. तो in the diagrammatic purpose से this is the very much important thing. आपको सारे pie charts जरूर से learn करने हैं. Now नीचे थोड़ा सा दिया हुआ है which I am going to tell you that they have told कि biologists are not sure about the prokaryotic species or neither they bother about it. तो क्या रीज़न है कि प्रोकैरियोट्स पे फोकस नहीं किया, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स ओनली. द रीज़न इट दैट प्रोकैरियोट्स आर वेरी मच स्मॉल. यू हैव स्टडीड अबाउट द बैक्टीरिया ऑल एंड ऑल. तो आपको पता है कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस दे म्यूटेट वेरी फास्टर रेट. तो एवरी टाइम दे म्यूटेट देयर जेनेटिक मटेरियल इज गोइंग टू बी चेंज. और जब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो नई स्ट्रेन्स बन जाती हैं. तो इतनी जल्दी जल्दी वो चेंज होती हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू काउंट देम ना. अभी तो A टाइप था, फिर B टाइप बन गया, तो अभी उसको उन्होंने A टाइप वाले में रखा था, थोड़ी देर के बाद वो B स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया. तो हाउ कैन बी इट पॉसिबल टू काउंट देम. तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है. दैट्स वाई दे आर नॉट गोइंग टू इट. और अगर बायोकेमिस्ट्री के थ्रू देखना शुरू करेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन उसका देख के काउंट करेंगे, तब तो वो पता नहीं कितने मिलियंस में आएगी. और जो कि तो शायद उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, समझना, वो सब कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट्स वाई दे आर नॉट इंटेंडेड टू स्टडी अबाउट द प्रोकैरियोट्स. यही प्रॉब्लम आती है उनके अंदर. नाउ दे हैव गिवन अगेन सम न्यूमेरिकल थिंग्स की वो डेटा दिया हुआ है जो आपको जस्ट सिंपल लर्न करना है कि 2.5% वर्ल्ड का लैंड एरिया है इंडिया के पास, कि ओनली 2.4%. आप इसको देखना, केवल 2.5 है.
और लेकिन जो है ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में हम लोग बहुत अच्छे से रिच हैं, क्योंकि वी हैव 8.1% ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी। और हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वी हैव 12 जो कंट्री में मेगा डाइवर्सिटी पूरे में है ना, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड में, उसमें से हम भी एक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं, हम भी उसमें से एक आते हैं। मेगा बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ में हम लोगों का भी नाम है। तो 45,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं हमारी, और इनके अलावा बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको कि अभी हमने डिस्कवर किया नहीं है, हमें डिस्कवर करना है। और अदरवाइज़ हम अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है 1 लाख के करीब प्लांट स्पीशीज़ हैं, मोर देन 3 लाख के करीब एनिमल स्पीशीज़ हैं, जो कि अभी हम कितनी डिस्कवर कर चुके हैं और कितनी हमें डिस्कवर करनी बाकी हैं। तो ऑल दीज आर द जस्ट डेटा, नॉट सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट येस यू हैव टू गिव अ रीडिंग टू इट। एंड ये चीज़ आपको नीचे भी बताई हुई है कि देयर आर लॉट्स ऑफ थ्रेट टू दीज स्पीशीज़, बिकॉज दीज आर कीप ऑन गोइंग टू एक्सटिंक्ट। एंड अभी हमने ढूंढी तो है नहीं एक्सटिंक्ट, वो पहले ही हो रही हैं। तो जो नेचुरलिस्ट हैं, जो नेचर को पढ़ने वाले बायोलॉजिस्ट हैं, तो they are worried about it and very much concerned about it because they are interested in such kinds of studies. So this is all for today. I have just given you that introductory thing. इसमें से जो important चीज़ें हैं मैंने वहाँ पे टिक कर रखा था. You have to learn that thing and give a reading to this chapter. Thank you. We will meet in the next lecture.